Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Now, after finding the selling price, when the cost price and gain or loss percent are given, let us now proceed and find out and learn how to find out the cost price when selling price and gain percent or loss percent are given. The formula to find out the cost price is cost price equals to selling price multiplied by 100 upon 100 plus profit percent. And in case of loss, the formula of cost price is selling price multiplied by 100 upon 100 minus loss percent. Now, this is the formula, but for finding the answer other than the formula, we will also understand the easy approach of finding the cost price. Let us understand through some examples. By selling a chair for rupees 1440, a trader gains 20%. Find the cost price of the chair. By selling a chair means this part explains by selling a chair for rupees 1440 means the chair is sold at rupees 1440. So the selling price of the chair is 1440. A trader gains 20% means the gain percent is 20%. And now we have to find out the cost price of the chair. Let us first solve this question using the formula. The cost price is given by selling price multiplied by 100 upon 100 plus profit percent. Now selling price is 1440 multiplied by 100 upon 100 plus profit percent. We will only take the value of profit percent, which is 20. So the denominator will be 100 plus 20. Now this will become 1440 multiplied by 100 upon 100 plus 20 will be 120. Now in the numerator 1440 and 100, and in the denominator 120. Now friends, I will cancel the 0 of 1140 and the 0 of 120. Now why I will cancel these two? Because I see 144 and 12. In the denominator 12 and in the numerator 144, and I know that 144 is divisible by 12, as 12 ones are 12 and 12 12s are 144. So in the denominator I have 1, I will ignore that. In the numerator I have 12 into 100, so my answer is 1200. So the cost price of this chair is 1200. Final answer. Now friends, we have seen the approach of solving this question using the formula. But trust me, we don't need the formula based approach for solving such questions.
solving this question the alternative way, easier way, and for that understanding of question is required. It says by selling a chair for rupees 1440, मतलब हमने इस चेयर को बेचा है, सेलिंग प्राइस है 1440. A trader gains rupees 20%, और ट्रेडर को 1440 पर बेचने पर उसे गेन या प्रॉफिट हुआ है परसेंट में 20%. तो क्वेश्चन इज आस्किंग कॉस्ट प्राइस. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है. नाउ बिफोर वी एक्चुअली go ahead and start solving this question, you have to understand a very basic point on cost price, selling price type of question. आपको ऐसे क्वेश्चन का एक बहुत बेसिक पॉइंट समझना है. आपको बेसिक पॉइंट ये समझना है कि हमारा जो भी सामान होता है सबसे पहले आती है उसकी कॉस्ट प्राइस. अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस होती है हमारी ओरिजिनल प्राइस. रिमेंबर, कॉस्ट प्राइस इज द इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस. सबसे पहले आती है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस से बनता है सेलिंग प्राइस. हमेशा कॉस्ट प्राइस से बनेगा सेलिंग प्राइस. अगर आपको प्रॉफिट होता है, वो चाहे रुपीज में हो चाहे परसेंट में हो, वो कॉस्ट प्राइस में आप ऐड कर दीजिए. सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. और अगर हमें लॉस होता है तो वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, और लॉस को आप माइनस कर दीजिए. सो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस. इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमें दो तरीकों से मिलता है. पहला, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करने से हमें सेलिंग प्राइस मिलता है. पे वेरी अटेंशन, सॉरी, पे एक्सट्रीम अटेंशन. सेलिंग प्राइस हमें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करने से मिलता है, और सेलिंग प्राइस हमें कॉस्ट प्राइस में लॉस को सबट्रैक्ट करने से मिलता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेलिंग प्राइस जब भी मिलेगा कॉस्ट प्राइस से मिलेगा. स्टार्टिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है, शुरुआत हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है. सेलिंग प्राइस जो बनता है वो कॉस्ट प्राइस से बनता है. अगर प्रॉफिट का केस है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. अगर लॉस का केस है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस हो जाएगा, दैट विल बी द केस ऑफ, दैट इज द सेलिंग प्राइस. नाउ अंडरस्टैंड कि अगर यही वैल्यू हमें परसेंटेज में दे दी जाए, अगर ये वैल्यू परसेंटेज में दे दी जाए तो रिमेंबर दैट कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिनल वैल्यू है, वो टोटल वैल्यू है, वो प्रोडक्ट की, आर्टिकल की टोटल वैल्यू है. तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को आपको लेना है 100%. इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. कॉस्ट प्राइस को हमने ले लेना है 100%. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, सो रिमेंबर कॉस्ट प्राइस इज द इनिशियल प्राइस. तो इस तरह के क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम लेंगे 100%. द टोटल वैल्यू, द फुल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, किसी भी चीज की जो टोटल वैल्यू होगी वो हमेशा 100% ली जाएगी. और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है क्वेश्चन में, लाइक इन दिस क्वेश्चन दे हैव सेड दैट प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो प्रॉफिट परसेंट 20% आप प्लस कर दीजिए. और याद रखना है, जब कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट परसेंट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस, जो यहां पर हो जाएगा 100% प्लस 20%, विच इज 120%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है यहां पर वो 120% है. कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस 120% है. क्वेश्चन आसान हो गया. कैसे? सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1440 दी हुई है, इसका मतलब 120% की वैल्यू जो है, सेलिंग प्राइस इज 120%, जो कि रुपीस में इन्होंने बताया है 1440. So if 120% is 1440, then 100% will be how much? क्वेश्चन यहां पर भी बहुत आसान है. If you pay attention, सबसे पहला goes without saying, बिना बोले ये बात जाती है कि परसेंट सिंबल हमें काट देना है. हमें 100% की वैल्यू x निकालनी है,
परसेंट सिंबल काट दिया। आप देखो कि 120 और 1440 का क्या रिलेशन है बच्चों। यहाँ तो सीधा समझ में आ रहा है कि ये नंबर इसमें 120 में 12 छुपा हुआ है और 1440 में 144 छुपा हुआ है। तो जरा अगर आपने स्क्वायर पर ध्यान दिया है तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये 120 में सॉरी 12 में 12 मल्टीप्लाई करने से हमें 144 आएगा, पर यहां पर 120 है तो आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो 120 में जब हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1440 मिलेगा। तो ऊपर हमारा 120 और 1440 में जो रिलेशन चल रहा है वो इंटू 12 का रिलेशन चल रहा है। अच्छा, अगर ऊपर इंटू 12 का रिलेशन चल रहा है तो नीचे भी इंटू 12 का रिलेशन, 100 और x में भी इंटू 12 का रिलेशन चलना चाहिए। 100 इंटू 12 हमारा आंसर आ गया 1200 या 1200। डायरेक्ट हमारा कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज हमें मिल जाएगा। और अगर ये मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं आया तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1440। इसमें हम 120 का 0 और 1440 का 0 कट कर देंगे। ये 12 है, 12 वनजा कट करेंगे, 12 12 144 कट करेंगे, x इंटू 1 x हो जाएगा और 100 इंटू 12 फिर से हमारा आंसर 1200 आ जाएगा। तो आपको जो मेथड समझ में आता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यू गो हेड विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो मैंने मेथड बताया कि 120 और 1440 का इंटू 12 का रिलेशन है, इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी। स्क्वायर्स और टेबल्स आप इसके लिए अपने सामने रखिए और जब हम सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को या जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको रेफर करिए। और रिकमेंडेशन ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो की स्पीड मत बढ़ाइए, 1.5x या 1.25x मत करिए। 1.25x आप कर सकते हैं पर उससे ज़्यादा आप मत करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते जाना है, तब आपको ये इंटू 12 का ये रिलेशन जो है समझ में आएगा। सो हियर अगेन आवर आंसर कम्स टू बी 1200। आई वुड लाइक टू समराइज अगेन दिस। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेलिंग प्राइस जो बनती है 1440 वो कहाँ से बनती है, वो कॉस्ट प्राइस से बनती है। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट परसेंट है तो आप उसे ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, उससे हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को हमेशा बाय डिफॉल्ट 100% लेना है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ 20% था, तो 100% प्लस 20% सेलिंग प्राइस 120% आ रही है, which is 1440. So 100% will be how much? You can either cross multiply or you can do by relation based method. By selling a auto rickshaw a rickshaw for rupees 9,240, Bansi loses 12%. For how much should he sell it to gain 12%? This question was a classic question for our exams, and still this is a very classic question which can be asked again in our exams. Now why I am telling you this is because in this one question there are two questions which are hidden. Let us demystify. The question says, जब रिक्शा को 9,240 रुपीज में बेचा, बंसी को लॉस हुआ 12% का। तो लॉस परसेंट यहाँ 12% दिया है, इसका मतलब 9,240 पर जब हम इसे बेचेंगे तो 12% का लॉस होगा। फर्दर सेज फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट, तो कितने रुपीस पर इसे बेचा जाए टू गेन 12%। तो अगर हमें 12% का गेन चाहिए तो इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। Now in both the cases they are asking the selling price. In the first case they have given the selling price, second case they are asking the selling price, but they are not talking about the cost price. And remember कि अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए
तो सेलिंग प्राइस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉस्ट प्राइस। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है तभी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस किससे फॉर्म होती है? कॉस्ट प्राइस से फॉर्म होती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन समझेंगे। पहले इन्होंने बोला बाय सेलिंग अ रिक्शा फॉर 9240, मतलब सेलिंग प्राइस है 9240, पर ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे हमें लॉस हुआ है। हाउ मच लॉस? 12% लॉस हुआ है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम इसे कितने में बेचना चाहिए कि हमें 12% का गेन हो जाए। मींस हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, दैट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट 12% होना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर हमें 12% का प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो इस रिक्शा की प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। और अगर बच्चों आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। विदाउट कॉस्ट प्राइस हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें अगर सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस निकालना है कि अगर ये रिक्शा 12% प्रॉफिट अगर इससे कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहला कंसिडरेशन ये है कि हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों ही हमेशा किस पर निकाले जाएंगे? कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाएंगे। और क्वेश्चन में इन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट बताया कि 12% के प्रॉफिट परसेंट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस के लिए उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन सा? कि सेलिंग प्राइस अगर 9240 है और लॉस अगर 12% है, देन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन पहले हम इसको यूज करके निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, बिकॉज हमारा कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो पहले तो हमें जो इन्होंने सेलिंग प्राइस 9240 है और 12% का लॉस है, पहले ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें रिक्शा का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि भाई अगर रिक्शा को 9240 पर बेचा और 12% लॉस हुआ तो एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस कितना है। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले को SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, इसको यूज करके हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और इस कॉस्ट प्राइस को हमें सेकेंड इक्वेशन में यहां पर पुट करना होगा और उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना होगा, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू। तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इन्होंने बोला है कि 12% प्रॉफिट पर अगर ये रिक्शा बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, वो इन्होंने दी नहीं हुई है। तो अब ये क्या चाहते हैं हमसे कि पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालें। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या इंफॉर्मेशन दे दी है? दैट सेलिंग प्राइस इसका 9240 है और ये 12% लॉस पर है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है और अब ये हमसे ये चाहते हैं कि ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालें। तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस एट लॉस परसेंट, इट इज सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। और ये जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकलेगी ये हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और उससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड बताऊंगा और दूसरा मैं आपको डायरेक्ट मेथड, इजियर अप्रोच बताऊंगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे परसेंटेज के कंसेप्ट के बेसिस पर इजियर अप्रोच से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अदरवाइज फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस मूव एंड हैव अ लुक एट कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले तो फॉर्मूला से इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और इन जनरल भी आपको एक फंडामेंटल वे, जो ओरिजिनल वे है, जो कन्वेंशनल तरीका है, वो आपको आना चाहिए। ट्रिक मेथड हम उसके बाद देखेंगे। Now let us first solve this question.
using the formulas. The question says that by selling a rickshaw for rupees 9,240 means the selling price is 9,240. Bansi loses 12%. Loss percent is 12%. For how much should he sell to gain 12%? So what should be the selling price? So that Bansi has a gain percent of 20%. Now if you want to find out the selling price, to find out the selling price, we should have the cost price. And to calculate the cost price, I will use this piece of information which is given, that when the rickshaw is sold for 9,240, Bansi loses 12%. तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस रिक्शा का 9,240 है 12% के लॉस पर, और फिर उन्होंने पूछा है कि अगर इसे 12% के गेन पर हमें बेचना है, सो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस. तो अगर हमें सेलिंग प्राइस एट 12% गेन निकालना है तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे जहां पर इन्होंने बताया है दैट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 9,240 एट लॉस ऑफ 12%. पहले हम इसको यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. तो लॉस परसेंट जब दिया है और सेलिंग प्राइस जब दी है, देन फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस विल बी एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. इस पार्ट को हमें ब्रैकेट में रखना है क्योंकि इसे हमें पहले सॉल्व करना है. सेलिंग प्राइस इज 9,240 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस. 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह हम 12 लिखेंगे. दिस विल बिकम 9,240 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस 12 होता है 88. नाउ न्यूमरेटर में 9,240 है, डिनोमिनेटर में 88 है. ये दोनों 11 से हम सिंप्लीफाई करते हैं. 11 से डिवाइड करेंगे 88 को तो 8 हो जाएगा. 9,240 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88, 4 कैरी, 11 4 जा 44 एंड दिस इज 0. Now we can divide 840 and 8 by 8. हम इन दोनों को 8 से डिवाइड करते हैं. 8 1 जा 8 होगा. 840 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 8 1 जा 8 0 जा 8 5 जा. सो इन द न्यूमरेटर हमारे पास आ रहा है 105 मल्टीप्लाइड बाय 100. न्यूमरेटर में आप 105 और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे इग्नोर कर दीजिए. इन द न्यूमरेटर आई हैव 105 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ सी देयर आर मेनी वेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई करने के कई और तरीके हो सकते हैं. आप 2 से कर सकते हैं, आप 4 से कर सकते हैं, आप राइट, देयर आर डिफरेंट नंबर्स यू कैन डू. बट माय रिकमेंडेशन इज कि आप अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करिए और इसको सिंप्लीफाई आप करिए. फाइनल आंसर आपका सेम आएगा. 105 इंटू 100 ये हो गया 10,500. इसका मतलब इस रिक्शा का कॉस्ट प्राइस हमें मिल चुका है 10,500. अब क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुका है 10,500, तो हम इसका सेलिंग प्राइस एट 12% गेन निकालेंगे. जब हमें गेन परसेंट दिया हो, कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट. गेन परसेंट को मैं शॉर्ट में G% लिख रहा हूं अपॉन 100. This will be cost price is 10,500 multiplied by 100 plus gain percent. Gain percent यहाँ पर 12% का है तो हम लिखेंगे 100 plus 12 upon 100. Now 100 plus 12 will become 112. ये हो जाएगा 10,500 multiplied by 112 upon 100. 100 के 2 जीरो हम 10,500 के 2 जीरो हम कट कर देंगे by the 2 zeros of 100.
and now we will multiply 105 with 112. 105 multiplied by 112, we can use the distributive property. Direct multiplication भी आप कर सकते हैं. So answer is 1176. उसके आगे आप एक जीरो लगा दीजिए, एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ. 105 and 112. This is 2 5s are 10. Write down 0, carry 1. 2 zeros are 0. This is 1. 2 1s are 2. Place a 0. 1 5s are 5. 1 zeros are 0. 1 1s are 1. Place 2 zeros. अच्छा, ये भी नंबर वापस 1 ही है, तो सारे डिजिट सेम टू सेम ही आ जाएंगे. दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 1. यू ऐड देम. दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 1. अगेन द आंसर इज 11,760. तो अगर हमें इस रिक्शा को 12% प्रॉफिट पर बेचना है तो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 11,760. So you see that if you solve this question using the formula method, question थोड़ा लेंदी हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, एरर के भी चांसेस होते हैं. जब आप किसी भी क्वेश्चन में इतने सारे कैलकुलेशन करो तो एरर के चांसेस आते हैं. आप हो सकता है एग्जाम टेम्परामेंट में जल्दी में आप सिंप्लीफिकेशन में कुछ सिली मिस्टेक हो जाए, या सिंप्लीफिकेशन में नंबर आप 8 की जगह 4 लिख दो. मैनी टाइम्स इट हैपन्स. और एक कॉमन इशू ये है कि हम जहाँ पर पेपर में ये सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पर जगह कई बार कम होने की वजह से हम जल्दी में नंबर्स आगे पीछे लिख लेते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम विच कैन कॉस्ट यू. इसलिए ये मेथड एक अच्छा मेथड है, आप इसे यूज़ करिए. स्कूल में आपके बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम आएगा. एग्जाम में आप इसे यूज़ मत करिए. एग्जाम में क्या करना है, लेट अस नाउ डिस्कस अ किलर मेथड फॉर यू. Now, the time to understand this question, that how we can solve this question without the formula. I'll review the question one more time. By selling a rickshaw for rupees 9,240, Bansi loses 12%. For how much should he sell to gain 12%? Question में हमें selling price दिया हुआ है 9,240, जो कि लॉस पर आया है. 12% के लॉस पर सेलिंग प्राइस 9,240 है, और इन्होंने पूछा है कि 12% के गेन पर सेलिंग प्राइस क्या होगा. सो अगर गेन परसेंट 12% है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ रिमेंबर, ये सेलिंग प्राइस हमेशा किससे बनती है, कॉस्ट प्राइस से बनती है. तो ये हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस से हम बनाएंगे सेलिंग प्राइस. हमारे यहां पर दो केसेस दिए हैं. पहला हमें लॉस का केस दिया है, तो याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस में जब हम माइनस करेंगे लॉस परसेंट तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, और दूसरी बार इन्होंने गेन पर 12% पर सेलिंग प्राइस पूछी है. तो जब हम कॉस्ट प्राइस में गेन परसेंट ऐड करेंगे, गेन परसेंट आई एम राइटिंग G%, जब हम गेन परसेंट को प्लस करेंगे तो भी हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस. तो हमें पहले सबसे पहले यह समझना है कि सेलिंग प्राइस जो आती है वो कहां से आती है, वो कॉस्ट प्राइस से आती है. अगर लॉस परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस परसेंट माइनस करने पर हमें एसपी मिलेगा, और अगर क्वेश्चन में गेन परसेंट दिया है तो कॉस्ट प्राइस में गेन परसेंट प्लस करने पर हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा. दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक अजम्पशन कि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बनेगी. लॉस परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आ गया. गेन परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस में वो गेन परसेंट प्लस कर दो, सेलिंग प्राइस आ गया. अब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा परसेंटेज में 100% लिया जाएगा. इट विल ऑलवेज बी टेकन एज 100% इन द परसेंट.
अब हमने इसे परसेंट में क्यों लिया, क्योंकि हमें लॉस परसेंट और गेन परसेंट परसेंट में दिया हुआ है, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस को भी परसेंट में ले लिया। तो वो 100% हमें लेना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस हमारी 100% होगी। ना अब इन्होंने पहले केस में बताया कि लॉस ऑफ 12% है। सो लॉस ऑफ 12% को हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में माइनस करना होगा। 100 माइनस 12% जब हम करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस जो आ रही है 100 माइनस 12% होती है 88%। इसका मतलब अभी जो करंट जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस का 88% है। कॉस्ट प्राइस हमारी 100 थी, लॉस हमारा 12% था, 100 माइनस 12 हमारा सेलिंग प्राइस बना 88%। इसका मतलब कि अभी जो हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू इन्होंने 9240 दी हुई है, ये एक्चुअली परसेंटेज में कितनी है, 88% है। और अब दूसरा गेन का केस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है, गेन परसेंट हमारा प्लस 12% होना चाहिए। गेन परसेंट है तो उसे प्लस करेंगे तो प्लस 12%, और CP 100% प्लस 12%, मतलब अब सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100 प्लस 12%, 112%। मतलब ये जो केस है दूसरा वाला, जहां पर हमें 12% गेन में बेचना है, वो परसेंटेज में कितना आ गया, 112% आ गया। हमें ये बताना है कि 112% की वैल्यू कितनी होगी, हम उसे x मान लेते हैं। क्वेश्चन इजी हो गया। 88% की वैल्यू 9240 है, तो 112% की वैल्यू क्या होगी, लेट्स इक्वेट। आई विल राइट दिस डाउन हियर, मैं यहां पर इसे लिखकर सॉल्व करूंगा। 88% इक्वल्स 9240, सो 112% विल बी हाउ मच। इसको हम x ले लेते हैं और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। 88 के साथ भी परसेंट का सिंबल है, काट दीजिए। 112 के साथ भी परसेंट का सिंबल है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल होने वाले थे, आप यहीं से इसे काट दो। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 88 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 112 मल्टीप्लाइड बाय 9240। $88 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कैंसिल करेगा। हमको 11 से कैंसिल कर सकते हैं, हमने पहले भी 11 से कैंसिल किया है, तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। और 9240 को अगर आप 11 से कैंसिल करो तो ये हो गया 11 8 जा 88, 4 कैरी, 11 4 जा 44, ये 840 हो गया। 8 और 840 को हम 8 से ही कट कर देंगे, ये 8 1 जा 8 हो गया। और 840 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा 8 1 जा 8 0 जा 8 5 जा। लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू 1 x आ गया, राइट हैंड साइड में 112 इंटू 105, फिर से हमारा सेम आंसर 11,760 आ जाएगा। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि आपको कोई डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। वेरी हेल्पफुल मेथड, और एग्जाम में यही मेथड आप यूज करिए। हैंस फोर्थ भी जब मैं कोई भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, हम इसी मेथड को यूज करेंगे। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेना है। लॉस परसेंट हुआ है तो वो माइनस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है या गेन परसेंट दिया है तो वो वैल्यू प्लस कर दीजिए, फिर से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पर डबल कैलकुलेशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिंगल स्टेप में हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि सेलिंग प्राइस जो है वो 88% है, जिसकी वैल्यू रुपीज़ में 9240 है। तो अगर हमें गेन पर बेचना है, मतलब 12% के गेन पर बेचना है, तो 112% की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली हमने अपना आंसर निकाल लिया है। सिंपल अप्रोच, बट इस वीडियो को एटलीस्ट आप 2-3 बार देखिए तो ज़्यादा आपको ये मेथड पक्का हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एन इलेक्ट्रिशियन sells a room heater for rupees 3,220, gaining 1/6 of its cost price. Find his gain percent. क्वेश्चन का मतलब है एक इलेक्ट्रिशियन ने एक रूम हीटर बेचा 3,220 में, तो सेलिंग प्राइस दे दी है इन्होंने which is 3,220. So selling price here is 3,220. Now they have not given the gain.
in terms of rupees or in terms of percent. They have given the gain in terms of cost price. They say that the gain is 1 by 6 of cost price, and they are asking the gain percent. Now friends, this question is very simple, and for solving this question we don't need SP at all. We don't need any information. We only need this gain is 1 by 6 of cost price. Now understand that gain percent is always calculated on cost price that we have discussed, and also you remember that gain percent or loss percent, they are always calculated on cost price, and cost price is the full price of the article, original price of the room heater, which is taken in percent as 100%. So if cost price is 100%, then gain percent, gain is 1 by 6 of CP, हमें उसको परसेंटेज में निकाल लेना है. सो गेन परसेंट हो जाएगा 1 by 6 of cost price. Cost price is 100%. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर गेन परसेंट लिख लिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हमने 100% में ले लिया है. तो गेन परसेंट हो जाएगा 1 by 6. इट विल बी 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी हमारा 100% है. अब ये जो भी हमारा आंसर आ रहा है ऑलरेडी परसेंट में आ रहा है, हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लेंगे. परसेंट का सिंबल अभी आप छोड़ दीजिए. आई सॉल्व 1/6 into 100. 1/6 into 100 हो जाता है 100/6. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से. दिस इज 2 3s, 2 50s. It becomes 50/3. Now friends, 50/3, if you want to convert it into mixed fraction, ये हो जाएगा 16 whole 2/3, and this will be in percent. और अगर आप इसे डेसिमल में निकालना चाहें तो ये बन जाएगा 16.66%. देखने में क्वेश्चन कितना ट्रिकी लग रहा था, बट एक सिंपल से सेंटेंस ने हमारा आंसर निकाल दिया. गेन इज 1 by 6 ऑफ सीपी. हमने सीपी को 100% ले लिया और गेन परसेंट हो जाएगा 1 by 6 ऑफ 100%, दैट इज 50/3 और 16 whole 2/3, जो कि हमारा आंसर ऑलरेडी परसेंट में है क्योंकि हमने सीपी को परसेंट में लिया है. आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे हमारा आंसर 16 whole 2/3 है. डेसिमल में करेंगे आंसर 16.66, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. इट विल बी 16.66%. The question was looking so difficult, but it is in reality so easy. So if you just understand some basic concepts, आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है अगर हमें इस मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो. हाउएवर अगर हम लॉन्ग मेथड से इसका आंसर निकालेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. और नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ कन्वेंशनल मेथड या लॉन्ग मेथड या फंडामेंटल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करना है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. Now let us understand the non-conventional method, or rather the long method of solving this question. Question says an electrician sells a room heater for rupees 3,220, gaining 1 by 6 of cost price. Find the gain percent. Now selling price is 3,220, gain is 1 by 6 of CP. The formula of gain percent is gain upon CP into 100. Now let us find out the gain and the CP. For solving the question, let us take the CP equals X. If CP is X, we can find out the gain. Gain is
1/6 of x. 1/6 of x. This will be, of is multiply. 1 into x will become x upon 6. So gain is x upon 6. Now remember that selling price is equal to, I'll draw a line here, selling price is equal to CP प्लस गेन. कॉस्ट प्राइस में जब हम गेन को प्लस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलती है. लेट अस यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द आंसर. सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 3220. That is equal to cost price is x plus gain is x upon 6. X plus x upon 6. I will do it on the next page. X plus x upon 6. X plus x upon 6 करने के लिए सबसे पहले आप इस x के नीचे 1 लगा लीजिए और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू एक्स करेंगे. 6 इंटू एक्स होता है 6x प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे. 1 इंटू एक्स होता है 1x प्लस ये हमारा न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 6 विच इज 6. नाउ 6x प्लस 1x. 6 प्लस 1 होता है 7. उसके आगे लगा दीजिए x अपॉन 6. सो x प्लस x अपॉन 6 विल बी 7x अपॉन 6. So this term on the right hand side will become 7x plus 6, 3220 equals 7x upon 6. Now 7x upon 6 में ये 6 आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ x विल बी 3220 multiplied by 6 upon 7. I'll solve it on the next page. 3220 multiplied by 6 upon 7 equals x. Let us divide 3220 by 7. This is 7 4s are 28, 4 carry, 7 6 are 42, place a 0. So when I divide 3220 by 7, I get 460. And now let's multiply 460 by 6 to get the value of x. 460 multiplied by 6 will give me 6 zeros are 0, 6 6 are 36, 6 carry 3, 6 4s are 24 plus 3, 27. So the value of x is 2760, and remember x is our cost price. So now we have found the cost price as 2760. कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है. सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है. वी कैन फाइंड आउट द गेन परसेंट, एंड फॉर दैट गेन परसेंट सबसे पहले हम गेन निकाल लेंगे. गेन विल बी SP माइनस CP. I'll just draw a line so that you understand. Selling price is 3220. Cost price is 2760. Subtracting them I get 0. 12 minus 6 is 6. 11 minus 7 is 4. That is the answer. My gain is 460. Now let's substitute it. Gain is 460. Cost price is 2760 multiplied by 100. Cancel the 0 of 460, 0 of 276. Let us simplify 46 and 276. इन दोनों नंबर्स में 23 छुपा हुआ है. इनको हम 23 से डिवाइड करेंगे. 23 2s are 46. This is divided by 23. 23 1s are 23. 4 carry हो जाएगा. 23 2s are 46. So this is 2 upon 12 into 100. 2 upon 12 को हम 2 से कट कर सकते हैं. This is 2 1s are 2.
2 6 जा 12, इट विल बी 1/6 इंटू 100. फिर से हमारा वही इक्वेशन बन गया है, 1/6 इंटू 100 ही हमने सॉल्व किया. इट विल बी 100/6, 100/6 हो जाएगा 50/3, 50/3 हो जाएगा 16 होल 2/3 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. और अगर आप इसे डेसिमल में लाना चाहें, इट विल बी 16.66%. दैट इज द आंसर. दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आया, बट दिस वाज अ स्लाइटली लॉन्गर मेथड. थोड़ा इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में. रिकमेंडेड दैट आप दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस करें, बट यू यूज द ट्रिक मेथड मोर. A man sold 2 radios at rupees 4,800 each. On one, he gains 20%, and on the other, he loses 20%. Find the gain or loss percent in the whole transaction. Classic question है, कई बार एग्जाम में आया है, आगे भी आने के बहुत चांसेस हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम दो मेथड देखेंगे, एक हम शॉर्ट मेथड देखेंगे, एक हम लॉन्ग मेथड देखेंगे. आपको शॉर्ट मेथड याद रखना है, लॉन्ग मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी है. शॉर्ट मेथड याद रखने से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. लॉन्ग मेथड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, काफ़ी सारे उसमें कैलकुलेशन है. शॉर्ट मेथड में कुछ भी नहीं है. पहले आप ये समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है. क्वेश्चन का मतलब है एक आदमी ने 2 रेडियो बेचे और दोनों ही रेडियो उसने 4,800 ईच पर बेचे. पहला रेडियो सेलिंग प्राइस बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 4,800. सेकेंड रेडियो बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 4,800. एक रेडियो बेचने में उसे 20% का गेन हुआ, मान लेते हैं फर्स्ट रेडियो में उसे गेन हुआ 20%, और अदर पे, अदर मतलब सेकेंड रेडियो पर हम मान लेते हैं लॉस हुआ 20%. तो उन्होंने पूछा ये बताओ कि टोटल में उसे क्या हुआ. तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल में आप ऐसा बोलेंगे सर एक में तो हमें 20% का गेन है, एक में 20% लॉस है, तो क्या उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट द आंसर. नाइदर गेन नॉर लॉस करके ऑप्शन होगा, वो आंसर नहीं है. क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, और अब इसका हम अप्रोच समझते हैं. इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल मेथड. जब आप 2 आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर सेल करें, मैं लिख देता हूं कंडीशन क्या है. शॉर्ट मेथड की कंडीशन क्या है? सेलिंग प्राइस अगर सेम है, सेलिंग प्राइस शुड बी सेम. सेकेंड कंडीशन, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट. क्वेश्चन में गेन परसेंट, सो आई विल रिमूव द प्रॉफिट परसेंट विद गेन परसेंट. हम प्रॉफिट परसेंट की जगह गेन परसेंट लिख देते हैं कि अगर गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट इक्वल है, सेलिंग प्राइस दोनों रेडियोस की सेम है, गेन परसेंट और लॉस परसेंट सेम है, एक को गेन परसेंट पर बेचा है, दूसरे को लॉस परसेंट पर बेचा है. जैसे यहां पर गेन है 20% और लॉस भी है 20%. अगर गेन परसेंट और लॉस परसेंट सेम है तो याद रखिए, ये कंडीशन आप याद रखिए, और इस केस में आप याद रखेंगे इट इज ऑलवेज अ लॉस. हमेशा ऐसे केस में लॉस होगा. और लॉस परसेंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, लॉस परसेंट इज गिवन बाय -x² / 100. यहां पर माइनस का साइन जो है वो हमें ये बता रहा है कि हमें लॉस हो रहा है. इसका प्लस और माइनस से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा. इस माइनस से, इस माइनस का मतलब ये है कि हमें लॉस हो गया. माइनस का मतलब आपको पता है लॉस हो जाना, डिक्रीज हो जाना. तो ये माइनस साइन जो इंप्लाई कर रहा है वो लॉस को इंप्लाई कर रहा है. इसका प्लस माइनस करने से कोई मतलब नहीं है. नाउ x² / 100. x क्या है? x है गेन परसेंट या लॉस परसेंट की वैल्यू, जो कि सेम है. यहां पर गेन परसेंट है 20%, लॉस परसेंट है 20%. तो x की वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है 20. x वो वैल्यू होगी जिस परसेंट जो गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा. तो x की वैल्यू हमने ले ली 20. x² है, मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर.
न्यूमरेटर में हमें लेना है 20 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमें लेना है 100। 20 का स्क्वायर होता है 20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 का जीरो काट दीजिए, 100 का जीरो काट दीजिए, 20 का दूसरा जीरो काट दीजिए, 100 का दूसरा जीरो काट दीजिए। डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कर दीजिए। 2 इंटू 2, हमारा आंसर आ गया 4। और ये जो आंसर आ रहा है ऑलरेडी परसेंट में ही आ रहा है, तो आपको इसे और परसेंट में लाने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ गया लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। हमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में 4% का लॉस होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे 4% लॉस परसेंट। बट रिमेंबर द कंडीशन। कंडीशन क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल शुड बी सेम एंड द गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों गेन परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हैं, दोनों आर्टिकल्स की या दोनों रेडियोस की, या कोई और आपको यहां पर आर्टिकल वो दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, एनिमल्स दे सकते हैं, काऊ हॉर्स दे सकते हैं, वॉच दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सेलिंग प्राइस सेम है और गेन परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हैं कि 20% का गेन और 20% का ही लॉस है, तो हमेशा ऐसे केस में हमें लॉस होगा और वो लॉस निकाला जाएगा, लॉस परसेंट निकाला जाएगा बाय द फॉर्मूला -x²/100। यहां पर माइनस का मतलब ये है कि हमें लॉस हो रहा है। हम सिर्फ x²/100 को कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू वो होगी जो गेन परसेंट या लॉस परसेंट में दी हुई है, जो कि यहां पर 20 है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर 4% आ रहा है। इसका मतलब इस पर्सन को 4% का ओवरऑल लॉस हो जाएगा। इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहां पर इन्होंने सेलिंग प्राइस को सेम बताया था। अगर इसी क्वेश्चन में वो कॉस्ट प्राइस को सेम कर दें, विल डू, हम इसको ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस यहां पर सेम होती दोनों ही रेडियोस की और गेन परसेंट 20 और लॉस परसेंट 20 का होता, तो ऐसे केस में हम बोलते कि इसे नो प्रॉफिट नो लॉस, नाइदर गेन नॉर लॉस होता। लेकिन वो तब होता जब कॉस्ट प्राइस की बात होती, पर यहां पर कॉस्ट प्राइस की नहीं, सेलिंग प्राइस की बात है। नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ये तब होगा जब कॉस्ट प्राइस सेम होगी। यहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है -x²/100। मतलब हमेशा यहां पर हमें लॉस होने वाला है कितने का? x²/100 का। सिंपल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द फंडामेंटल और द लॉन्ग अप्रोच। Understand the question. Says a man sold 2 radios for rupees 4,800 each. So first radio sold means selling prices 4,800. Second radio sold means selling price is 4,800. So selling price of both the radio are 4,800. On one he gains 20% and on the other he loses 20%. So in the first, let us take this is a gain of 20%. The second radio, this is a loss of 20%. We have to find the gain or loss percent in the whole transaction. Whole transaction मतलब ये दोनों रेडियो खरीदने और बेचने पर उसे ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस है, हमें दोनों रेडियो की कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। सो लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द रेडियोस। आई विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेडियो। आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सेलिंग प्राइस इज 4,800. Gain percent is 20%. Cost price. Now either you can go by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाता है इसका SP मल्टीप्लाइड बाय 100/100 प्लस गेन परसेंट। तो या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करूंगा, हम कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर उसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ कॉस्ट प्राइस में जब गेन प्लस किया जाता है
तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस. विद दिस आई विल सॉल्व द कॉस्ट प्राइस. विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस यूजिंग दिस. कॉस्ट प्राइस को हमें हमेशा 100% लेना है. गेन परसेंट यहां पर 20% है, तो सेलिंग प्राइस परसेंट में आ गई 120%. नाउ सेलिंग प्राइस इज 120%, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4800 दी हुई है. तो कॉस्ट प्राइस जो कि 100% है उसकी वैल्यू क्या होगी. सिंपल हो गया क्वेश्चन. अब बच्चों 12 और 48 में इंटू 4 का रिलेशन है, तो 120 और 4800 में इंटू 40 का रिलेशन होगा. आप 120 में इंटू 40 करें तो हमें 4800 मिलेगा, क्योंकि 12 और 48 हमने पकड़ लिया कि 12 इंटू 4 48 होता है. तो 120 और 4800 में आप एक जीरो और बढ़ा दीजिए. नो प्रॉब्लम. सॉरी, यहां पर हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे. नाउ हमें यह पता चल गया दैट सेलिंग प्राइस इज 120% एंड 120% इज इक्वल टू रुपीज में उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 4800 बताई हुई है. तो अगर 120% की वैल्यू 4800 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए 120 में 12 है, 4800 में 48 है, तो 12 इंटू 4 48 होता है. इसका मतलब 120 में हमें इंटू 4, पर यहां पर जीरोस भी हैं. 120 में एक जीरो है, 4800 में 2 जीरो हैं. तो इसका मतलब हमें यहां पर 40 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर हमने ऊपर 40 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें 40 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. 100% इंटू 40, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 4000. दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच. सबसे आसान अप्रोच है ये फॉर्मूला से भी ज़्यादा इजी अप्रोच है, पर अगर आप फॉर्मूला में कंफर्टेबल हैं तो आप फॉर्मूला से आप निकालिए, उसमें भी आपका आंसर 4000 रुपीज़ ही आएगा. तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 4000. नाउ लेट्स गो बैक. सीपी हमें मिल चुका है 4000. फर्स्ट रेडियो का कॉस्ट प्राइस हो गया 4000. Now similarly, let us find out the cost price of the second radio. SP is 4800. Loss percent is 20%. CP को हम ले लेते हैं 100%. लॉस को उसमें हम माइनस करेंगे 20%, और सीपी में से जब हम लॉस परसेंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस इन परसेंटेज. हमें परसेंटेज में सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो हो गया 80%. अच्छा, 80% की वैल्यू हमें रुपीज में क्वेश्चन में बताई है 4800. तो सीपी जो कि 100% है उसकी वैल्यू हम बहुत इजीली निकालेंगे. 8 और 48 का रिलेशन इंटू 6 का होता है, पर यहां पर ये 80 है, तो यहां पर हमें इंटू 60 करने से 4800 मिलेगा. और अगर ऊपर हमने इंटू 60 किया है तो 100 में भी हमें इंटू 60 करना होगा. 100 इंटू 60 हो जाएगा 6000. मतलब यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी 6000 रुपीज. तो हमारे सेकेंड रेडियो का कॉस्ट प्राइस हमें मिल चुका है, विच इज 6000 रुपीज. नाउ वी हैव टू कंपेयर वेदर इट इज अ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस प्लस करना होगा. हमें टोटल सेलिंग प्राइस लेनी होगी, और हमें दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस प्लस करना होगा. हमें टोटल कॉस्ट प्राइस लेनी होगी. सो लेट्स टेक द टोटल कॉस्ट प्राइस. फर्स्ट रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 4000. सेकेंड रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 6000. तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 10000. एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट द टोटल सेलिंग प्राइस. फर्स्ट रेडियो की सेलिंग प्राइस है 4800. सेकेंड रेडियो की सेलिंग प्राइस है 4800. सो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी
4,800 प्लस 4,800 दैट इज 9,600. सो टोटल सेलिंग प्राइस हमारी आ रही है 9,600. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है, वो 10,000 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 9,600 है. सो इट इज अ केस ऑफ लॉस. वी कैन फाइंड द लॉस बाय CP minus SP, which is 10,000 minus 9,600, जो आ जाता है 400. तो हमें यहां पर 400 रुपीज का लॉस हुआ है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द लॉस परसेंट. लॉस परसेंट विल बी लॉस अपॉन CP इंटू 100. लॉस है 400, CP है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 के 2 जीरो हम कट करेंगे, 10,000 के 2 जीरो कट कर देंगे, 400 के हम 2 जीरो कट करेंगे, 100 के 2 जीरो कट कर देंगे. डिनोमिनेटर में 1 बचा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. न्यूमरेटर में 4 इंटू 1, हमारा आंसर 4% आ गया. तो यहां पर भी हमारा आंसर जो है लॉस परसेंट 4% आ रहा है. पर इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. हमें दोनों रेडियोस की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, उसमें भी हमें 2 अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, या अगर आप परसेंटेज मेथड से भी यूज़ कर रहे हैं, रिलेशन मेथड से, उसमें भी टाइम लग जाएगा. और उसके बाद दोनों का CP ऐड करके, दोनों का SP ऐड करके, उन्हें कंपेयर करके लॉस परसेंट निकालना वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. नॉट रिकमेंडेड फॉर द एग्जाम. स्कूल के लिए अच्छा है, आप इसे यूज़ करें, पर एग्जाम में आप इसे यूज़ ना करें. हाउएवर ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.